Assalamu alaikum guys, welcome back on my channel. Acha student, today we have very important discussion and that topic is related to that subject of admath. अच्छा अब मैंने एक डिसाइड किया है कि नाउ आई एम स्टार्टिंग सम वन इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स एंड दैट क्रैश कोर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक and those topic I have selected from the subject of mathematics as well as subject of the admath. तो ये स्टूडेंट के लिए वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं एंड इफ यू डिसाइड अ कैरियर ऑफ इंजीनियरिंग और इफ यू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट further maths in your A levels, so you have to have a very strong knowledge and sound grip on these topic. तो इसके अंदर आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल क्लासेस. There are some students, those are sitting in my class, and I am recording this video or lectures particularly for those students who cannot attend physically my class. So now let's start from integration, and that is very important topic from admath. So now let's say, first of all, before starting the concept of the integration, everybody, I know that if you don't have knowledge about the topic of differentiation, so you cannot understand this topic. So first of all, you have to have knowledge about the topic of the differentiation. आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, and then you can move towards that topic. So let's just I recall, because now today the topic of discussion is not the differentiation. Differentiation we have covered in some previous lecture. So today we have the topic of integration. Just I recall you कि what is the use of differentiation is here. So let's say हम यहाँ पे करते हैं कि first of all use of differentiation. Use of differentiation. Okay. अब देखो देयर आर सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डिफरेंशिएशन. हमारे पास डिफरेंशिएशन के 3 से 4 यूज हैं. क्या है भाई? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन इज यूज टू फाइंड रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज. अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑलवेज व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये याद रखो. तो नॉर्मली वी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन 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 represented by किससे रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों? dy ओवर dx. ओके, dy ओवर dx. अच्छा, इसके अंदर द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये क्या कहलाएगा भाई? चेंज इन y. अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन with respect to one unit change in x. अच्छा बच्चों याद रखो, हमेशा we always take one unit change in x. हमेशा याद रखना. हम क्या करते हैं? dy over dx. what does it means? change in y with respect to one unit change in x. इसका मतलब ये. तो अच्छा, एक तो ये हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया. सेकंड, इट इज यूज टू फाइंड आउट द स्लोप. किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड to find out
slope of line or equation or function. क्लियर? किसलिए यूज होता है? किसी भी लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए, इक्वेशन का स्लोप मालूम करने के लिए वे यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, अच्छा, एक तो ये हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, स्लोप हो गया. क्लियर? तो अब कैसे निकालते हैं स्लोप और इक्वेशन? तो नॉर्मली वी राइट dy over dx. So these are some important use of differentiation. ठीक है, अब हम कैसे लेते हैं भाई डिफरेंशिएशन? बहुत बेसिक सा तरीकेकार है कि भाई y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इट इज काइंड ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन. ऐसे ही है बच्चों, क्या है ये? नॉन लीनियर इक्वेशन है. अच्छा, अब आप बोलोगे यार कि भाई why I am talking about the differentiation, topic of discussion is integration. Just recall you कि now first of all you have to recall the concept of the differentiation. तो इसको dy over dx निकालना है. अच्छा बच्चों, पहले बताओ कि भाई which one is your dependent variable? Yes, loudly. Y is your dependent variable. And which one is your independent variable? X is independent variable. So you need to find out the dy over dx. Okay, so dy over dx, क्या करेंगे? ये आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है. पावर, क्लियर? पावर कोफिशिएंट से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है. 2 ऑलरेडी मौजूद था, तो 2 into 2, और पावर में से क्या करते हैं? 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. Why? You always take with respect to 1 unit change. ठीक है, इसलिए मैंने कहा था यू ऑलवेज टेक विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज. तो 1 माइनस कर देते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? dy over dx का 4x की पावर 1. तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 4x. क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन हो गई. अच्छा, अगर ये यूं लिखा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू y स्क्वायर, तो विच वन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल? y is your, x is your dependent variable. Clear? X is your dependent variable. Which one is your independent variable? Y. So what you need to find out? dx over dy. Yes, rate of change in x with respect to change in y. Recall, यही चीज क्लियर करना चाहता हूं. ठीक है? Yes, this is called dx over dy. क्योंकि देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज. ठीक है, डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंटेड बाय dy over dx. मैंने क्या कहा था? y चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज इन x. तो तुम्हें बताया था ना, क्या बताया था? y was डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे ही था. क्लियर? और x was इंडिपेंडेंट. x was independent variable. तो बच्चों अब इधर आ जाओ ना, यहां पे क्या है? रिवर्स हो गया, x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो भाई अब क्या निकालोगे? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y. तो अब इसका क्या होगा? यू विल हैव dx ओवर dy. यू गॉट माय पॉइंट? dx ओवर dy. यस, कैसे निकालोगे बच्चों? वही चीज है, 2y, गुड, 2y एंड 1 माइनस फ्रॉम पावर. क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा? 2y. यू गॉट माय पॉइंट? क्लियर? अब ये बेसिक से डिफरेंशिएशन हो गई हमारी. अब हम आगे मूव करते हैं. अच्छा, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अगर कांस्टेंट होता तो 0 होता. गुड. अगर यहाँ पे कोई प्लस कांस्टेंट हो रहा होता तो उसका रेट ऑफ चेंज, क्योंकि कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये विल हैव अ 0. क्लियर? तो यहाँ पे 0 होगा. अब आ जाओ इंटीग्रेशन में भाई. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यूज करते हैं कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के यूज पे आ जाते हैं हम.
अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट यूज है डिफरेंशिएशन का. Differentiation also used to find out the maximum and minimum value of the function. ये भी नोट कर लो, ठीक है, ये भी नोट कर लो. Differentiation is also used to find minimum and maximum value of functions. ठीक है बेटो. Differentiation is also used to find out the maximum and minimum value of functions. उसके लिए भी यूज हो सकता है. ठीक है, किसी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू डोमेन. डोमेन क्या होती है बच्चों? अगर मैं ये लिखता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिखा है, सही लिखा है. विच वन इज डोमेन? f of x. x. y is a function of x. So x is domain, y is range. You got my point. Good. Domain. And this one is range. range. क्लियर? बिल्कुल. ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया. तो विद रिस्पेक्ट टू डोमेन हम फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. अब ये आगे एडवांस लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है, बट मैंने तुम्हें यूज बता दिया. ठीक है, कि व्हाट आर द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम इंटीग्रेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं बच्चों. Now we are moving towards the integration. Okay भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट आर द यूज ऑफ इंटीग्रेशन. लिख देते हैं भाई. ये हो गया भाई यूज ऑफ इंटीग्रेशन. यूज ऑफ इंटीग्रेशन. यूज ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों. यूज ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? अच्छा भाई, पहला यूज तो क्या होगा भाई इंटीग्रेशन का? नाउ द फर्स्ट यूज ऑफ इंटीग्रेशन is used to find out the equation of line. Clear? कर्व और लाइन. कर्व और लाइन, किसी भी कर्व की और लाइन की इक्वेशन को, किसी भी कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन is used to find out इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन मालूम करने के लिए यूज होती है. ठीक है. अच्छा, और अनदर इंटीग्रेशन is used to find out what is used to find out area under the curve. ठीक है, is used to find out area under the
curve within limit. Within limit. So these are two important use of integration. ठीक है भाई. अच्छा. और second चीज integration is reverse of differentiation. एक चीज नोट कर लो. Integration reverse of differentiation. Clear? Differentiation का reverse है integration. कैसे? How? We will discuss later. अच्छा, अब देखो कैसे करते हैं भाई. पहली बात ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई what is the way to integrate something. भाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वो दिया हुआ है, लेट्स से, पहले तो मैं बता दूं क्या होता है एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है. पहले ये क्लियर करो कि भाई बच्चों ये देखो, अगर ये दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x है और ये y है. ऐसे ही होता है. ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है. एक कर्व प्लॉट करते हैं. ठीक है. ओके. और मैंने कहा कि नाउ along the x axis this is a, this is b. अब मैं कह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहां पे लिया और मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब that bounded area किन किन चीजों पे डिपेंड करता है भाई. ये बाउंडेड एरिया डिपेंड करता है. क्लियर? एक तो इस कर्व पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर? और along the x axis it depends on the lower limit and upper limit. ठीक है. so that bounded area the above bounded area, ठीक है, डिपेंड्स किस पे कर रहा है बच्चों? यस. किस किस के ऊपर कर रहा है ये बाउंडेड एरिया? किसके अंदर डिपेंड कर रहा है? कर्व. भाई एक तो एक कर्व के अंडर है, डिपेंड्स ऑन दैट कर्व. ठीक है. और along the x axis किसके अंडर है? इट इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड अपर लिमिट. ये लोअर वैल्यू है तो इसको लोअर लिमिट कह रहा हूं और दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट. तो दिस बाउंडेड एरिया डिपेंड्स ऑन द curve. Second, along x axis किस पे हो गया? लोअर लिमिट क्या है? जो a है. ठीक है. एंड अपर लिमिट क्या है? b है. क्लियर? इन दो पे डिपेंड कर रहा है.
तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू दिस लिमिट टू फाइंड आउट एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लोअर एंड अपर लिमिट, क्लियर। इस लोअर एंड अपर लिमिट को के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा टू फाइंड आउट दिस एरिया। अब जो भी है, मिसाल के तौर पे ये dy ओवर dx जो भी गिवन है, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एंड यू कैन फाइंड आउट दिस एरिया, क्लियर। अब हम इसको कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने एरिया का फॉर्मूला बता दिया, क्लियर। अब हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम सिंपल सा ही कर सकते हैं कि भाई y और dx, क्या कहा, ये फंक्शन क्या था, एक कर्व है, इक्वेशन है, क्या है, कर्व है y, किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूं, dx के रिस्पेक्ट कर रहा हूं, क्लियर। क्योंकि किसके रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y में किसके रिस्पेक्टिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके रिस्पेक्टिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव में इसको फाइंड आउट कर रहा हूं। अब अगर यहां x होता और यहां y होता तो फिर मैं क्या करता, इसको x इंटू dy करता, क्लियर, बिल्कुल, तब एरिया होता। तो क्या बना एरिया का, इस ये चेंज इन y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x ओवर द लिमिट ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, क्लियर। ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला हो गया, एरिया अंडर द कर्व, क्लियर। अच्छा भाई, अब आपके पास फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, लेट्स से मैंने एक जुमला कहा कि भाई यहां पे इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं ना बच्चों कि भाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। भाई क्या, वो डिवीजन आर रिवर्स ऑफ, सॉरी, डिवीजन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। कैसे भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 6, ठीक है, और 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और 6 डिवाइडेड बाय 3 2, तो वो द रिवर्स विद ईच अदर, क्लियर, बिल्कुल। तो अब मैं ये कह सकता हूं सेम जैसे आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, रिवर्स ऑफ ईच अदर, सिमिलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, क्लियर, एक दूसरे की रिवर्स होते हैं। तो ये हमें फाइंड, अब तो ये हमें पता है, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, अब हम कुछ फंक्शंस लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर हम उसको आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। अभी हम लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स से पहले तो अगर मेरे पास ये गिवन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है कि भाई एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, a x की पावर n,
एंड डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल सा है, देखो क्या होता है, पावर में एक प्लस हो गया, ठीक है, और उसी से डिवाइड कर गया, और प्लस सी कांस्टेंट। अच्छा, अब ये पूछोगे भाई ये सी कहां से आ गया? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड सी? क्लियर? तो याद रखो, whenever you have integration without limit, always you add a constant. ये नोट कर लो, integration without limit we always add a constant that is called c. एक unknown constant है which value you don't know. क्या है भाई बच्चों? अगर मुझे डिफरेंशिएशन में याद करो, मैंने कहा भाई रिवर्स है, डिफरेंशिएशन है, इधर देखो भाई, ये दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे बच्चों? यस, लुक एट हियर, डिफरेंशिएट करना है 2 to the 4 तो क्या होगा? dy ओवर dx। क्लियर? क्या होगा? 2 to the 4, x की पावर 2 माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा? 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4x, क्लियर, राइट, dy ओवर dx। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, क्या करता हूं? इंटीग्रेट करता हूं, तो भाई देखो क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx, 4x dx, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूं? dx, ठीक है। तो अब क्या करूंगा इंटीग्रेट कर कर? विदाउट लिमिट है ना, यही कहा था ना, विदाउट लिमिट है। क्या करूंगा देखो, क्या हो जाएगा? क्या बताया था फॉर्मूला? 4x की पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 ऑलरेडी है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। 1 प्लस 1, और क्या कर रहा हूं? कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं, क्लियर, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है देखो बच्चों, लुक एट हियर, तो ये क्या हो रहा है? 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, एंड दैट c इज व्हाट? 3, क्लियर। तो अब आंसर क्या आएगा देखो, वही आ गया, ये इक्वेशन आ जाएगी, यस, क्लियर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यू विल हैव 2x स्क्वायर प्लस c, ये इक्वेशन आ गई। एंड c मैंने क्या कहा था, बट c you cannot define, so that's why you mark is here या put is here constant c which is unknown, ठीक है, क्लियर। क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो c क्या हो चुका होता है? कांस्टेंट 0 हो चुका होता है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं हम विदाउट लिमिट, तो यू ऑलवेज कीप विद प्लस c, क्लियर, बिल्कुल, ओके। इट इज द स्टोरी बिहाइंड कांस्टेंट, तो मैंने यहां पे c ऐड कर दिया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लें, ठीक, ताकि क्लियर हो जाए। बिठा दो इसको यहां, या इसको यहीं रखो, यहां पे लेते हैं हम एग्जांपल। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन विद लिमिट, और हम कमिंग क्लास में करेंगे। डिफरेंशिएशन, वो सॉरी, इंटीग्रेशन विद लिमिट हम कमिंग क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी हम ये करते हैं, राइट, तो क्लियर है, ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ था dy ओवर, एग्जाम्पल लिया हमने, क्या दिया हुआ था भाई? dy ओवर dx इक्वल टू 4x क्यूब, क्लियर। नाउ
find out the equation of it is a cubical equation और नॉन लीनियर इक्वेशन, ऐसे ही है, क्लियर? सो इट इज नॉन लीनियर इक्वेशन, हम क्या देते हैं, नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर है, राइट? अब नाउ ये कह रहा है भाई फाइंड आउट दी, मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट इक्वेशन, फंक्शन और इक्वेशन ऑफ द कर्व। अगर ये नॉन लीनियर है तो अल्टीमेटली यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्लियर? बिल्कुल। तो अब ये कह रहा है भाई फाइंड आउट इक्वेशन दैट इज y, ठीक है, राइट? तो करते हैं भाई, सही है, सही लिखा है, क्लियर? ये सही लिखा है। तो अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल टू y, किसके बराबर होगा, इक्वल टू y। तो भाई ये तो y हो गया, क्योंकि ये क्या है, क्या कहा था मैंने, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्लियर? क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, रिवर्स ऑफ ईच अदर, क्लियर? तो मैंने यहां लिख दिया y हो गया। अब इसको क्या करूंगा बच्चों, 4x की पावर 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, सही है, राइट? तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। सही है, क्लियर? ओके, मूव फॉरवर्ड, यस, ठीक है। अनदर एग्जांपल, अच्छा भाई, अब दूसरी एग्जांपल दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है दिस वन, क्या, इसको मिटाते हैं, now the second example is example number 2, yes, क्या गिवन है भाई, इंटीग्रेट करना है x, सॉरी 4 ओवर x क्यूब इंटू dx, इंटीग्रेट करना है। देखो डिनोमिनेटर में यू विल हैव x, ठीक है, x क्यूब डिनोमिनेटर में है, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि यू कीप इट इनटू न्यूमरेटर, तो इसको क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो जब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये 4x की पावर -3 dx हो जाएगा बच्चों, सही है, क्लियर? अब इंटीग्रेट करें, इजी हो जाएगा, तो नाउ डू इट फास्ट। तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर -3 प्लस 1, सो -3 प्लस 1 एंड सो ऑन c, तो you will have 4x की पावर व्हाट, -2, और नीचे क्या आ जाएगा, -2 प्लस c, क्लियर, राइट? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो व्हाट, सो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर -2 and -2, good, -2, 2x की पावर -2 प्लस c, तो व्हाट आई कैन डू इट, -2 इसको नीचे ले आऊं अपॉन x स्क्वायर प्लस c, इट इज योर आंसर, क्लियर?
Okay, अब take another example. Yes. Okay. The example is example 3. Example number 3. Is what? ये given है भाई, इंटीग्रेट करना है 3x प्लस स्क्वायर प्लस x. करें बच्चों इंटीग्रेट? ठीक है, यू कैन डू योर सेल्फ. यस, क्विकली. या तो इसको तो पहले सबसे पहले ये कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेट करना है 3 इंटू एक्स की पावर 1/2. राइट, क्लियर. एंड नाउ प्लस व्हाट, 15 एक्स की पावर -2 प्लस एक्स इंटू dx. क्लियर. नाउ डू इट फास्ट. सो क्या हो जाएगा भाई, 3x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस 15x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 एंड प्लस x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एंड प्लस c. राइट, क्लियर, विजिबल. ओके. Yes. तो क्या हो रहा है, 3x 3/2 नीचे 3/2 प्लस 15x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. सो यस, रिवर्स कर दे तो ये बच्चों में क्या हो जाएगा, 3x 3/2 ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2/3. फ्रैक्शन पलट जाएगी 2/3. ये क्या हो जाएगा -15/x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. यस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल. सो x की पावर 3/2, ये 2 इधर आ गया 2 -15/x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. इट इज योर आंसर. क्लियर. So I think these are very simple concept of integration, and we took some simple example, and now in future video or future lecture we will start to discuss the some concept of integration related to the composite function. Then we will move towards the integration by limit and by parts. ठीक है, so ये भी आती है integration by parts and integration with limits. We will move in future videos. और उसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह. हम ये अपना कोर्स पूरा क्रैश कोर्स जो है बिफोर योर एग्जाम हम इसको वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे और दैट विल बी beneficial for you. So it is from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.